Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, It is always a delight for us to know that you are listening to this broadcast. ये जानना हमारे लिए हमेशा आनंद की बात होती है कि आप इस प्रसारण में सम्मिलित हैं। That is why we like to hear from you. इसीलिए हमें आपसे सुनना अच्छा लगता है। If you haven't written to us already, we like to hear from you. यदि आपने अभी तक हमें नहीं लिखा है तो हम आपसे सुनना चाहेंगे। And if you are listening to this broadcast for the first time, और यदि आप इस प्रसारण को पहली बार सुन रहे हैं, we have just started a series of messages on the first epistle of Peter. तो हमने पत्रस की पहली पत्री पर अभी ये संदेश श्रृंखला प्रारंभ ही की है। In the last few messages, we saw how Peter was teaching us to count our blessings. पिछले कुछ संदेशों में हमने देखा कि कैसे पत्रस हमें हमारी आशीषों को गिनना सिखा रहा था। And we called these the sevenfold blessing. और हमने इसे 7 सतही आशीषें कहा था। What are these blessings? ये आशीषें क्या है? Let me recount them for you. मैं आपके लिए उन्हें फिर से गिन देता हूँ। The blessing of election, चुनाव की आशीष, the blessing of the new birth, नए जन्म की आशीष, the blessing of a living hope, जीवित आशा की आशीष, the blessing of the inheritance that we have in Jesus Christ, उस मिरास की आशीष जो हमें यीशु मसीह में मिली है, the blessing of God's protection, परमेश्वर के द्वारा सुरक्षा की आशीष, the blessing of suffering for Christ's sake. मसीह के लिए दुख उठाने की आशीष, And finally, Peter tells us about the blessing of the grace of God. और अंत में पत्रस हमें परमेश्वर के अनुग्रह की आशीष के विषय में बताता है। Over the next few messages, we are going to learn how we must respond to these blessings. अगले कुछ संदेशों में हम सीखेंगे कि हमें इन आशीषों के प्रति कैसे प्रत्युत्तर देना आवश्यक है। In the Bible, the role of the Father is very, very important. बाइबल में पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। Many television programs that are showing around the world devalue the role of fathers. संसार में चलने वाले बहुत सारे टेलीविजन कार्यक्रम पिताओं की भूमिका की कीमत को कम करके दिखाते हैं। It seems that movies and television have declared war on godly fatherhood. ऐसा लगता है कि जैसे फिल्मों और टेलीविजन ने ईश्वरीय पितृत्व के साथ युद्ध छेड़ रखा है। Men in general and fathers in particular are often portrayed as not very wise. आमतौर पर पुरुष और पिताओं को खास करके अक्सर ज्यादा समझदार नहीं पेश किया जाता है। In the past few decades, there seems to be an undeclared war on fatherhood. पिछले कुछ दशकों से ऐसा लगता है कि पितृत्व पर अघोषित युद्ध चल रहा है। My listening friends, here is the problem with this kind of thinking. मेरे श्रोता मित्रों, इस प्रकार की सोच के साथ समस्या ये है। When the idea of manhood and fatherhood is so distorted, जब पुरुषत्व और पितृत्व पर विषय को इतना तोड़ा मरोड़ा जाता है, many men will lack the most basic understanding of what it is to be fathers in the image of the Heavenly Father. तो अधिकतर पुरुष इस मूल आधार को नहीं समझेंगे कि स्वर्गीय पिता के सुदृश्य पिता होना क्या है। This troubles me greatly. ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। Even some believing men and women and children are growing up with that distorted image in mind. यहाँ तक कि कई विश्वासी पुरुष, स्त्रियां और विश्वासी बच्चे भी इस तोड़ी मरोड़ी हुई आकृति को दिमाग में रखकर बड़े हो रहे हैं। Institutions have displaced the father as a provider for his family. संस्थानों ने पिता को परिवार की आवश्यकताएं पूर्ण करने वाले के स्थान से हटा दिया है। Research is finding that the very core of our problems in society is the declining role of the father in the family. शोधों से पता चल रहा है कि समाज में समस्याओं का केंद्र परिवार में पिता की कम होती हुई भूमिका है। Someone said, until respect for fathers is restored, किसी ने कहा है कि जब तक पिताओं का आदर नहीं लौटाया जाता, society will increasingly lose its sense of moral fiber, discipline, order and genuine love. समाज लगातार अपनी नैतिक संरचना, अनुशासन, नियम और शुद्ध प्रेम का एहसास खोता चला जाएगा। If this is important to society at large, यदि ये समाज में इतने बड़े स्तर पर महत्वपूर्ण है, I want you to think how even more important it is for believers. तो मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि विश्वासियों के लिए यह कितना अधिक महत्वपूर्ण है। My listening friends, I want you to listen to what I'm going to tell you very carefully. मेरे श्रोता मित्रों, मैं चाहता हूं कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूं इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। None of us can truly live a healthy Christian life
without proper understanding of the fatherhood of God. हम में से कोई भी परमेश्वर के पितृत्व को सही ढंग से समझे बिना सच्चाई से एक श्रेष्ठ मसीही जीवन नहीं जी सकता। And that's exactly what the Apostle Peter is saying here. और यही बात प्रेरित पत्रस यहाँ पर कह रहा है। If you have a Bible, turn to 1 Peter chapter 1 verses 13 to 21. यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया पहला पत्रस 1 अध्याय के 13 से 21 पदों पर खोलिए। आइए हम पढ़ें पत्रस की पहली पत्री, पहला अध्याय 13 से लेकर 21 पद। पत्रस की पहली पत्री, पहला अध्याय 13 से लेकर 21 पद। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। और आज्ञाकारी बालकों के न्याय अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लोहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। In verse 13, Peter said, therefore. 13 पद में पत्रस कहता है इसलिए। Circle that word. इस शब्द पर एक घेरा बना लीजिए। I'm going to give you a simple but basic principle of biblical interpretation. मैं आपको बाइबल की व्याख्या का एक साधारण परंतु मूल नियम देने जा रहा हूं। Whenever you see the word therefore, जब भी आप ये शब्द इसलिए देखें, you must find out why that word is therefore. आपको अवश्य देखना है कि ये शब्द यहाँ किस लिए है। Therefore is used for a reason. ये शब्द इसलिए किसी कारण प्रयोग किया जाता है। We will look for that reason today. आज हम उस कारण को देखेंगे। After Peter tells us about all the blessings that we have in Christ Jesus, पत्रस के द्वारा हमें उन सब आशीषों के बारे में बताने के बाद जो मसीह यीशु में हमारे पास हैं, then the first word he uses after this is the word therefore. इसके बाद पहला शब्द जो वो प्रयोग करता है वो है ये शब्द इसलिए। Why is it there? ये यहाँ क्यों है? Our clue is in the verses before it, that is verses 1 to 12. हमारा सूत्र इससे पहले के पदों में है, वो है 1 से 12 पद। Because of this sevenfold blessing, इस 7 सतही आशीषों के कारण, therefore you should live in a certain way. इसलिए तुम्हें एक निश्चित ढंग से जीना चाहिए। Out of gratitude to his sevenfold blessing, अपनी 7 सतही आशीषों के प्रति आभार से, you should therefore conduct your life in a way that is distinct from the way the rest of the world lives. इसलिए तुम्हें अपना जीवन इस ढंग से जीना चाहिए जो बाकी सारे संसार के जीने के ढंग से अलग हो। Out of sheer thankfulness for these things, इन सब बातों के प्रति शुद्ध धन्यवाद के साथ, therefore your behavior must be a reflection of your thankfulness for these things. इसलिए तुम्हारा आचरण इन सब बातों के प्रति तुम्हारी धन्यवादिता का प्रतिबिंब होना चाहिए। Because of these blessings, therefore your lifestyle must mirror your blesser. इन सब आशीषों के कारण इसलिए तुम्हारी जीवन शैली तुम्हारे आशीष देने वाले को प्रदर्शित करे। Your lifestyle at the very least should mirror your thankfulness for God's blessings. आपकी जीवन शैली सबसे कम होकर भी परमेश्वर की आशीषों के लिए उसके प्रति आपकी धन्यवादिता को दिखाए। Your attitude should not be get the blessings, keep the blessings, and then keep taking more blessings. आपका व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आशीषें लो, आशीषें रखो और फिर आशीषें और आशीषें लेते रहो। No. नहीं,
Peter says that these blessings give you responsibility. पतरस कहता है कि ये आशीषें आपको जिम्मेवारी देती हैं। You are under obligation because of these blessings. इन आशीषों के कारण आपका कुछ दायित्व है। Obligation to live a life that is worthy of your calling. ऐसा जीवन जीने का दायित्व जो आपकी बुलाहट के अनुसार हो। Obligation to live a life that is worthy of the name of Jesus whom you follow. ऐसा जीवन जीने का दायित्व जो उस यीशु के नाम के योग्य हो जिसके पीछे आप चलते हैं। The word therefore is there for a reason. ये शब्द इसलिए यहाँ पर किसी कारण है। I told you in the past message that our salvation is completely dependent on the grace of God. अपने पिछले संदेश में मैंने आपको बताया था कि हमारा उद्धार पूर्ण रूप से परमेश्वर के अनुग्रह पर आश्रित है। From beginning to end, our salvation is a result of the grace of God. शुरू से लेकर अंत तक हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह का परिणाम है। There are 3 stages for our salvation. हमारे उद्धार के 3 स्तर हैं। The first stage पहला स्तर is when we recognize that we are sinners. वो है जब हम मान लेते हैं कि हम पापी हैं। And our salvation is only possible through the death of Jesus Christ on the cross. और हमारा उद्धार केवल क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा ही संभव है। The second stage दूसरा स्तर is when we walk daily conscious of our salvation. जब हम अपने उद्धार में प्रतिदिन सावधानी पूर्वक चलते हैं। The third stage तीसरा स्तर is when our salvation is fulfilled in heaven. वो है जब स्वर्ग में हमारा उद्धार पूर्ण होगा। The day when we meet Jesus face to face in heaven. उस दिन जब हम स्वर्ग में यीशु से आमने सामने मिलेंगे। All of these 3 stages of our salvation are totally dependent on the grace of God. हमारे उद्धार के ये तीनों स्तर पूर्ण रूप से परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर हैं। To save us, God the Holy Spirit opens our spiritual eyes. हमें बचाने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी आत्मिक आंखें खोलता है। To save us, God the Holy Spirit brings us under conviction. हमें बचाने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें विश्वास में लाता है। To save us, God the Holy Spirit sustains us as we walk with Jesus throughout our lives. हमें बचाने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा जब हम अपने जीवनों में यीशु के साथ चलते हैं हमें संभाले रखता है। And then it is God the Holy Spirit who will take us into glory and assures us of that inheritance that we have in Christ. और फिर ये परमेश्वर पवित्र आत्मा ही है जो हमें उस महिमा में ले चलेगा और हमें उस मिरास के प्रति निश्चित करता है जो केवल मसीह में हमारी है। While all of these come to us by grace alone, जब ये सब केवल अनुग्रह के द्वारा ही हमें मिलता है, yet the recipients of these blessings तो इन आशीषों के प्राप्तकर्ता are under obligation to live a life of obedience. इस दायित्व के अधीन है कि वो आज्ञाकारिता का जीवन जिएं। Our obedience to the Father is our responsibility. परमेश्वर के प्रति हमारी आज्ञाकारिता हमारी जिम्मेवारी है। But that obedience does not spring from a morbid sense of duty. परंतु ये आज्ञाकारिता कर्तव्य पूरा करने के बीमार विचार से नहीं आती। It is not the kind of obedience where it says, I've got to get this over and done with. ये ऐसी आज्ञाकारिता नहीं है जो कहती है मुझे ये करना ही है और बस इसे निपटाना है। That obedience does not stem from a sense of some dreaded obligation. ये आज्ञाकारिता किसी भयदायक जिम्मेवारी के विचार में से उत्पन्न नहीं होती। No. नहीं। That obedience does not arise from a need for a cumbersome religious ritual. ये आज्ञाकारिता किसी भारी धार्मिक रीति की आवश्यकता में से नहीं आती। No. नहीं। That obedience comes out of sheer attitude of gratitude to God. ये आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति उत्तम आभार के व्यवहार में से आती है। It comes out of that place where you say, God, you have done all of this for me. ये उस स्थान से आती है जहां आप कहते हैं परमेश्वर ये सब तूने मेरे लिए किया है। Now I want to do everything in my life in obedience to your word. अब अपने जीवन में हर कार्य मैं तेरे वचन की आज्ञाकारिता में रहकर करना चाहता हूँ। And this attitude of gratitude manifests itself in 6 different ways. और आभार का ये व्यवहार अपने आप को 6 अलग अलग तरीकों से प्रकट करता है। And we're going to look at all of these over the next several messages. और आने वाले कई संदेशों में हम इन सब पर गौर करेंगे। Here is what Peter said. यहाँ पत्रस कहता है, Look with me at verses 13 to 21 of 1 Peter. पत्रस की पहली पत्री के 13 से 21 पदों को मेरे साथ देखिए। In this sense of gratitude, thankfulness to God should make us alert.
आभार के इस एहसास में परमेश्वर के प्रति धन्यवादिता के द्वारा हमें सावधान होना चाहिए। Peter said, पत्रस कहता है, live your life being spiritually alert, not asleep. अपना आत्मिक जीवन सावधान रहते हुए जियो, ना कि सोते हुए। Secondly, दूसरा, he said, in gratitude and thankfulness to God, live your life in holiness. उसने कहा परमेश्वर के प्रति धन्यवादी और आभारी रहते हुए पवित्रता में अपना जीवन जियो। Thirdly, he said, तीसरा, उसने कहा in thankfulness to your heavenly Father, live a life in reverence to God. अपने स्वर्गीय पिता के प्रति धन्यवाद में, परमेश्वर के प्रति श्रद्धा में अपना जीवन जियो। How do you show respect to God? आप परमेश्वर के प्रति आदर कैसे प्रकट करते हैं? You show your reverence to God in your everyday life by how you walk and talk. आप परमेश्वर के प्रति श्रद्धा अपने प्रतिदिन के जीवन में अपने चाल चलन के द्वारा दिखाते हैं। Let's look at the first one. आइए पहले को देखें। In thankfulness to your heavenly Father, be on your guard. अपने स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करते हुए अपने प्रति सचेत रहो। 1 Peter chapter 1 verse 13 says, पहला पत्रस 1 अध्याय का 13 पद कहता है, gird the loins of your mind. अपनी बुद्धि की कमर बांध लो। Now some of you might be asking, अब आप में से कई पूछ रहे होंगे, what and where are the loins of my mind? बुद्धि की कमर क्या और कहाँ होती है? There's not a scientist or a doctor in the world that could show you the loins of your mind. इस संसार में कोई ऐसा विज्ञानी या डॉक्टर नहीं है जो आपको आपकी बुद्धि की कमर दिखा सके। This is a word picture. ये शब्द चित्र है, It is a metaphor. ये एक अलंकार है। What is Peter saying? पत्रस क्या कह रहा है? In Peter's time, people did not wear suits. पत्रस के समय में लोग सूट नहीं पहनते थे। They wore long flowing kaftans. वो लंबे लटकते हुए चोगे पहनते थे। Back then, they wore their kaftans everywhere they went. उस वक्त वो जहां भी जाते वही चोगे पहनते थे, But not all of the time. परंतु हर समय नहीं। Wearing the kaftan is a sign of leisure. चोगा पहनना फुर्सत का निशान था। It is a sign of relaxation. ये आराम का निशान था। It's a sign of taking it easy in life. ये आरामदायक जीवन का चिन्ह था। When you are relaxed and taking it easy, a kaftan is great. जब आप आराम से बैठे हैं और सब ठीक ठाक चल रहा है तो चोगा अच्छा है। But if you are going to work in the field as a farmer, परंतु यदि आप एक किसान के रूप में खेत में काम करने जा रहे हैं, or if you were going to fish like Peter did, या आप पत्रस की तरह मछलियां पकड़ने जा रहे हैं, or if you are going to war as a soldier, या एक सैनिक के रूप में युद्ध में जा रहे हैं, you have to pull that garb and tuck it into your belt so you can be free to work or fight. तो आपको इस पोशाक को उठाकर अपनी बेल्ट में कसना होता है ताकि आप काम या युद्ध कर सकें। That kind of leisurely dress is too cumbersome for a serious-minded worker. एक गंभीर चित्त कार्यकर्ता के लिए इस प्रकार की आरामदायक पोशाक बहुत भारी होती है। So they had to gird their loins, इस कारण उन्हें अपनी कमर बांधनी पड़ती है, tuck their flowing robes into their belts so they could do their work. झूलते हुए किनारे बेल्ट में कसने पड़ते हैं ताकि वो काम कर सकें। Spiritually speaking, it works the same way. आत्मिक रूप से कहें तो यहाँ भी ऐसा ही है। A flowing and relaxing mind is not good for serving the Lord. एक झूलती हुई और आरामदायक बुद्धि प्रभु की सेवा के लिए ठीक नहीं है। It is not good for the life of obedience. ये आज्ञाकारिता के जीवन के लिए ठीक नहीं है। And you have to pull the garb of your mind. और आपको अपनी बुद्धि की पोशाक को खींचना है। You have to tuck it into your belt so you can be free to work. आपको इसे अपनी बेल्ट में कसना आवश्यक है ताकि आप काम करने के लिए स्वतंत्र हो सकें, So you can be free to fight. ताकि आप लड़ने के लिए स्वतंत्र हो सकें, So you can be on the alert all the time. तो आप हमेशा सचेत रह सकते हैं। Spiritually speaking, आत्मिक रूप से कहें तो that kind of leisure dress is too cumbersome for a serious-minded farm worker. इस प्रकार का आरामदायक वस्त्र खेत में काम करने वाले एक गंभीर चित्त कार्यकर्ता के लिए बहुत भारी है। The kind of leisure dress is too cumbersome for a serious-minded soldier. एक गंभीर चित्त सैनिक के लिए इस प्रकार का आरामदायक वस्त्र बहुत भारी है। That kind of leisure dress is too cumbersome to use for work. इस प्रकार का आरामदायक वस्त्र काम करने के लिए बहुत भारी है।
It represents the flabby mind. ये एक ढीले ढाले मन को प्रकट करता है। It is the life that just could not care less and is careless all the time. ये इस तरह का जीवन है जो लापरवाह नहीं हो सकता और हर समय लापरवाह है। It is the life that never takes the Christian faith seriously. ये इस प्रकार का जीवन है जो मसीही विश्वास को कभी गंभीरता से नहीं लेता। Peter is saying from a spiritual perspective, एक आत्मिक नजरिए से पतरस कह रहा है, it is the same way with the serious-minded believer who must be on guard. ये एक गंभीर चित्त विश्वासी के साथ भी ऐसा ही है जिसे सचेत रहना आवश्यक है। The believer must tuck these flabby things out of his mind. विश्वासी को इन ढीली ढाली बातों को अपने मन से बाहर निकालना आवश्यक है। The truly grateful believer does not allow for flabby thinking. एक सच्चा धन्यवादी विश्वासी ऐसी सुस्त सोच नहीं आने देता। A grateful Christian is careful of what he or she reads. एक धन्यवादी मसीही सावधान रहता है कि वो क्या पढ़ता या पढ़ती है। A thankful Christian is careful of what he or she sees. एक धन्यवादी मसीही सचेत रहता है कि वो क्या देखता या क्या देखती है। A thankful Christian is careful of what he or she says. एक धन्यवादी मसीही सचेत रहता है कि वो क्या कहता या क्या कहती है। A Christian who is counting his or her blessings एक मसीही जो अपनी आशीषें गिन रहा या रही है is not easily given to the flab of compromise. जल्द ही समझौता नहीं कर बैठता। A Christian who is counting his or her blessing एक मसीही जो अपनी आशीषें गिनता है या गिनती है does not just kill time by doing nothing for God or Christian growth. परमेश्वर या मसीही बढ़ोतरी के लिए कुछ ना करते हुए खाली बैठकर वो समय बर्बाद नहीं करता। But the Christian who is counting his or her blessing is always alert. परंतु मसीही जो अपनी आशीषों को गिनता या गिनती रहती है वो हमेशा सचेत रहता है। The dress of the believer's mind is tucked into the belt of spiritual discipline. विश्वासी के मन की पोशाक आत्मिक अनुशासन की बेल्ट में कसी जाती है। A Christian who is counting his or her blessing एक मसीही जो अपनी आशीषों को गिनता या गिनती रहती है is always looking for opportunities to see to it that others share in the blessing. वो हमेशा इस अवसर की खोज में लगा रहता है कि दूसरों को भी इन आशीषों में सहभागी होते हुए देखे। A serious believer is always looking for ways to be a blessing to someone else. एक गंभीर विश्वासी हमेशा इस खोज में लगा रहता है कि वो किसी दूसरे के लिए आशीष बन सके। A serious believer is always looking as to how to share the word of God with someone else. एक गंभीर विश्वासी हमेशा इस प्रतिज्ञा में रहता है कि कैसे किसी को परमेश्वर का वचन सुनाए। The serious believer out of gratitude does all of that. एक गंभीर विश्वासी आभारी रहते हुए ये सब करता है। And I am sorry that my time has run out. और मुझे अफसोस है कि मेरा समय समाप्त हो गया है। So please tune in next time when we will learn that we must not only gird our loins, तो अगली बार भी सम्मिलित होइएगा जब हम देखेंगे कि हमें केवल अपनी कमर को ही नहीं बांधना है but we must practice self-control. परंतु हमें आत्म नियंत्रण का अभ्यास भी करना है। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।